will be recording. Okay, we will be recording this session. You asked a question about advantages and disadvantages. One thing you should the template that I shared, and as was your question, that every template talks something about advantages. They aren't saying anything disadvantages. That is because you should always write an essay in a positive tone. Never ever use negative tone, right? And they are not. And secondly, they are saying disadvantages. So they are like 2-3 paragraphs, right, in an essay, around Yes. around 4 paragraphs. So in first paragraph, you should introduce the topic because that's the introduction. In the second paragraph, you should provide the advantages. In third paragraph, you can write just 1 or 2 lines about the disadvantages. Disadvantages doesn't mean talking something negative. And then in the final paragraph, the fourth paragraph, the last paragraph, you write the conclusion. That's it. So there are some essays in which they ask, like I was doing one of the essay and they said, what are the advantages and disadvantages of over competition, over competitive to individuals and the society? So that means they simply ask to write advantages and disadvantages. Obviously, Because because they in have the written the word and, they are not saying or. If they say or, okay, simply write advantages. No need to write disadvantages. But if they are saying and, you should write advantages and disadvantages. okay, so how may I write disadvantages? Like if both body paragraph contains both disadvantages, so you mean at the end 2 lines of the third paragraph? If it's advantages and disadvantages, advantages in the second paragraph and disadvantages in the third paragraph. Just Yeah. write 1 line for both. No, I'm saying if I have to write advantages, and as you said, you have to write just 2 disadvantages at the end. So where should I write disadvantages? You were not getting my point. First paragraph is just introduce the topic. In the second paragraph, Yes. write 1 line about advantages. Write one, you need to write phrases, not keywords. Please avoid using keywords because people who are using keywords, they are not getting marks. Write phrases, that means write a statement about the advantages of the topic. In the third paragraph, you write 1 line about the disadvantages of the topic. That's it. Okay. But sorry to ask you again, but the problem is if essay completely said right advantages and disadvantages. So first body paragraph advantages and third body paragraph disadvantages, right? Because they simply asked to write both. Yes. Okay. Hmm. So in some scenarios, as you said, if they said advantages or disadvantages, so I have to write advantages. And you also mentioned just write 2 or 1 line at the end about disadvantages. So that's what I'm saying. Where should I write disadvantage? If it's only or, so you write Yes. advantages in second paragraph also and third paragraph also. Okay. So there is no need to say any disadvantage. Basically because they are saying or means या ये लिखें या advantages लिखें या disadvantages लिखें. Okay. And एक problem थी, I just read one of the PT experts said you don't have to write example if they don't ask you to write example. And I saw your essay template. There is no example as well. Actually, writing the advantages is actually itself is an example because you are writing some examples. You are giving some examples that what kind of advantages do they provide. So, writing advantage itself is an example. Okay, so I don't need to say, for example, a survey conducted by whatever university reveals that this proportion of students did this. You can So I write. don't need to. You can mention Okay, examples. There is no harm in writing an example. They are not stopping you. okay. So how many words you think? Because I did my exam last month, and I got 65 in writing. Because when I was doing my mock exam, I was getting 82, 83. So I got 90 in speaking, 82 in reading, 74 in listening. I know it was my mistakes in listening. I think it was spelling mistakes. And I don't know how come 65 in writing because I got 2 essays in my exam. That what I'm saying. That is because people are blindly following the template. This is not the case. Yes. And sometimes people say write keywords. No, please avoid using keywords. Write
sentences or phrases. And also the point is you are aiming for 79, right? Yes. Okay, for that, because you are saying that listening you scored bad, that means not only the essay that gave you less marks, it was also other parts of the thing that are common in listening and writing, like right, highlighting correct words, right from dictation. These things are included in writing and listening part accordingly. So you are making mistakes. Did you see your breakdown? In breakdown, they have clearly mentioned that where you are lacking. The breakdown, the blue lines, the analysis. Yes, I saw. Also summarize written text. I was just doing comma and because when I was practicing Ape Uni, I was just doing comma and then next sentence. So it was giving me full marks. What Language Academy was saying, just write Don't comma. trust App Uni so much. Actually, the thing is, please, because if you are aiming for 79, you should write phrases, not keywords. Summarize spoken text, you should write phrases. How to write phrases? For that, I have made a video also, and also follow the concept idea given by Nukuls. Like you listen the lecture for 5 seconds and then you start writing it. No wonder while you are writing it, the speaker is continuously speaking, right? It's okay, it's fine. Just try to write at least the lecture that they're giving. Just try to note down 5 lines at least or 5 phrases at least. Yeah, Then yes. try and summarize written text is very easy. You not need to do Yeah. anything much about it. I've also made a video on how to summarize, how to attempt summarize written text. So it was not just the essay that you lost your marks. There are other parts also. Yeah, I lost marks in summarize written text and summarize spoken text. So I've gained my mistake in summarize spoken text, especially because I saw the Nakul video and I know what to do now because how he was writing full lines, I know this strategy now. So I'm fine because I'm practicing summarize spoken text and I'm fine with I'm getting 9.5, 9.1 something. But summarize written text, there is a bit confusion. I was doing comma and then next statement and comma and then what Varun said, just write comma and then furthermore comma and then moreover. But when I used this strategy in Ape Uni, it didn't work. No, So what should I do in? when you write a moreover, see, you have to summarize written text is something where you write one sentence, right? The aim is to write one sentence. Yes, When you write yes. a word moreover, it starts another sentence. Moreover का मतलब ये है कि ये बात भी हो रही है और ये बात भी हो रही है. मोर ओवर का मतलब ये मोर ओवर यानी कि मजीद मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो वो तो दूसरा जुमला हो Mhm. गया ना इसका मतलब दैट इज अ सेकंड स्टेटमेंट मोर ओवर इज यू ऑलवेज यूज्ड टू स्टार्ट another point. So but summarizing index is just to write one statement, so avoid using word moreover. Don't use word moreover. So Please what should I write, use? you write one line and then okay, first tell me how many words are you writing because they ask you for 70 words. How many words? 65, Huh? 65, 65, 66. Okay, good, fine, but make sure to go for 70 words because you know, if you provide less vocabulary to the system, you are giving them less content to work with. क्योंकि हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है, गोरे 2 लफ्जों में अपनी बात कह देते हैं, उनकी वोकैबुलरी अच्छी है. हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आप उसको कंटेंट ही कम दोगे तो आपको मार्क्स भी कम देगा. 65 is not bad score, but please try to like that's a good. 65 to 70 75 लिख सकते हैं तो No, 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 it's not fine. I 75. can write. No, no, not 75. 70 is the limit. Please read the instructions. Oh, 70 is 70 is the the limit. limit. Okay, I've written somewhere. I forgot. Yeah, Okay. 70 But is I the always limit. write 65, 66. Oh, 65 is fine. So the trick is you write one line, then put a Yeah. comma, then write a second Mhm. line, then write end, and then write a third line. That's it. No, no hard and But fast. then And because you know we cannot tell with the topic. एक moreover एक होता है, एक however होता है. मोर एवर जी. यूज करने का अपना एक मकसद होता है, हाउ एवर यूज करने का अपना एक मकसद होता है. मोर एवर ये कहता है कि इस बात के बारे में ये भी कहा गया और ये भी कहा गया. हाउ एवर का मतलब ये होता है कि ये बात की गई मगर मेरी ये राय है. तो हाउ एवर इज फॉर लाइक फॉर गिविंग ऑल द एडवांटेजेस and moreover is like Mhm. you are giving one advantage and second advantage and third advantage. However, like you say this was the advantage but this is the disadvantage. So we don't know, you are not reading the whole paragraph, so you cannot tell that
what kind of a content the essay is giving you, the paragraph is giving you. So I would suggest, I used to do the same moreover and however, but I never Furthermore, furthermore exactly, but I never got score in AP uni. Then I avoided it. कॉम्प्लिकेट ना करे, वो बहुत सिंपल है, उसमें मेरे फुल मार्क्स आए। जो ब्लू लाइन है वो कैसे पता चला, क्योंकि मेरी ब्लू लाइन कंप्लीट आई है। blue बहुत line सिंपल, एक complete. जुमला लिखे, कॉमा लगाएं, दूसरा एक जुमला लिखे, कॉमा लगाएं, एंड लिखें, और तीसरा जुमला लिख दे, दैट्स इट। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ, मुझे समराइज रिटन टेक्स्ट में लाइंस बहुत शॉर्ट शॉर्ट आई, जैसे एवरी लाइन वाज 9 10 words, 9 That's the 8 9 10. that's the best thing. That's the best thing. Because you know, if the line is very long, उनके अंदर, उनके लाइन के अंदर ही इतने कॉमास होते हैं। तो इतने इतने कॉमा वाली जब आप लाइन यूज करोगे ना, तो वो एक सेंटेंस का जो मकसद है ना, वो खत्म हो जाता है। ओके, सो बस ठीक है, मैं फर्स्ट लाइन देन कोमा, अनदर लाइन कोमा, एंड दैट्स इट. बिकॉज यस, एंड हाउ डू यू पिक अ लाइन, जो एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक की लाइन है ना, वो पिक करे, और कोशिश करे वो लाइन पिक करे जिसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखे हुए हों। ज्यादा वर्ड्स हो मगर ज्यादा उसमें हाइफन ना हो, ज्यादा उसमें कॉमास ना हो, ज्यादा उसमें इन्वर्टेड कॉमास ना हो, यानी कि कोई सिंबल ना हो। अच्छा, वो डैश जो है उसका पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं देखा है कि वो डैश वाले वर्ड्स अवॉइड करने हैं, जैसे क्या कहते हैं, आई यूज टू ओवर अवॉइड इट। कंपेटिटिव. आई यूज टू अवॉइड इट, यस, आई यूज टू अवॉइड इट। जैसे यूएस का डॉट तो मुझे पता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं लिखना, उसमें ऑलरेडी डॉट आ जाता है. तो जैसे कोलोकेशंस होती हैं कुछ, जैसे ओवर कंजम्पशन या जो भी है, डैश ओ डब्ल्यू ई आर डैश कंजम्पशन. तो ये वाले वर्ड्स अवॉइड करूं मैं, डैश वाले. बिकॉज हमें नहीं पता ना, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं देता, पता नहीं चलता उसको क्या चाहिए। तो आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, राइट? तो मैं खुद से एक्सपेरिमेंट कर रही होती थी। सो द थिंग इज, यू, हाँ, लोग क्या करते हैं, जब समराइज रिटन टेक्स्ट आता है, एकदम से काम टाइप करना शुरू कर देते हैं। नहीं, उस पर 1 2 मिनट दें, 10 मिनट बहुत है। लुक एट द हम्म. पैराग्राफ फॉर 1 to 2 minutes एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि मैंने कौन सी लाइनें पिक करनी है। ये नहीं, आप क्या होता है, एक दफा आप टाइप कर लेते हो, फिर आपको लगता है जो आपने लाइन टाइप की है उसमें कंटेंट कम है और टाइम भी चला गया, फिर आपको लगता है नहीं, मुझे ये लाइन नहीं पिक करनी चाहिए थी। तो एक दफा स्किम करें एंड ट्राई टू फिगर इट आउट, नोट डाउन कर ले कि मैंने ये वाली लाइन उठानी है, ये वाली उठानी है, और ये 3 लाइन उठानी है। तो 3 लाइनें ऐसा तो कोई सेंस, सॉरी सॉरी, आप बोलें. नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है आप पहली लाइन उठाए, आप सेकंड उठा ले, थर्ड उठा ले, फोर्थ उठा ले। मैं क्या करती हूँ, पहली लाइन पढ़ती हूँ। मुझे पहली लाइन मजा नहीं दे रही होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा यूएसए, फुल स्टॉप्स, यूएसए के अपने वो डॉट डॉट डॉट्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो मुझे लगता हम्म. है नहीं, और इसमें बहुत ज्यादा कॉमास दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा आइफन्स है, मुझे पहली लाइन पसंद नहीं आ रही। क्या पता मुझे सेकंड लाइन पसंद आ रही हो, आप सेकंड लाइन उठा लें। और फिर दूसरा, अगर 2 पैराग्राफ दिए हुए तो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखें, और जो ऐसे की लास्ट लाइन है वो उठा ली। क्योंकि हमेशा व्हेन आई वाज गिविंग आइल्स दे ऑलवेज से दैट द पैराग्राफ, द फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में काफी ज्यादातर कहानियां लिखी हुई होती है कंफ्यूज करने के लिए। ये मैंने आइल्स में रूल पढ़ा था। ओके. इसमें वैसे मेरे ठीक. सारी, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की लिंक दे दूंगी, क्योंकि मैंने जो जो स्ट्रैटेजीज यूज की थी वो बड़ी लंबी लंबी वीडियोस है, 1 1 घंटे की हैं। सो आई, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं, बिकॉज आई हैव एन एग्जाम टुमारो, बट आई हैव मेंशन्ड इन डिटेल्स दैट हाउ आई अटेम्प्टेड द पेपर, द टेस्ट। हाँ, नहीं नहीं, आई वुड लव टू, आप मुझे काइंडली शेयर कर दें, अगर आपके लिए पॉसिबल, आप मुझे राइटिंग के कोई टेम्पलेट सॉरी, कोई अपने ऐसे रिटर्न किए हुए सेंड कर सकते हैं जिसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और टू ओपिनियन ऐसे हो, इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो आपने मुझे सेंड किया. अब इस तरह तो आई गेव यू द टेम्पलेट ना, यही टेम्पलेट है मेरे पास। अब यही तो असल कहानी है कि आप टेम्पलेट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है. तो उसका ठीक है, इजी क्योंकि तरीका मैं. है, इजी तरीका जो मैंने लाइनें दी हुई है वो ब्लैंक नहीं है, वो पूरी लाइन है। तो बस उसमें ये है कि आपने इस लाइन के अंदर ना टॉपिक से रेलिवेंट चीजें लिख देनी। एंड हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू राइट इन द एसे? लास्ट टाइम आई रोट 270 280, लेकिन दिस टाइम आई एम प्लानिंग अराउंड 240 250. एंड डिड यू प्रूफ रीड इट? नहीं, दैट वाज माय मेजर मिस्टेक. यही तो गलती है, देखिए, मेरी जो स्ट्रैटेजी क्योंकि मेरे थी। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हुए हैं, मैंने अभी नोट किया है. और अब मैंने अपने आप को प्रैक्टिस ऐसे किया है कि मैं टेम्पलेट 8 मिनट्स में पहले लिखता हूँ कंप्यूटर पे. इस मैंने मतलब कि फुल अपना टेम्पलेट ओके किया हुआ है, तो उसके बाद फिर मैं उसको फर्दर उसमें चीज़ें ऐड करता हूँ. बिल्कुल, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एटलीस्ट
200 वर्ड्स लिख लो। मैंने लिख लिए, फिर मैं देखती हूँ कितना टाइम बचा है। अगर 5 मिनट बचे हैं तो फिर मैं अपने ऐसे को प्रूफ रीड करती हूँ, मजीद टाइप नहीं करती। हाँ, अगर 8 मिनट बचे हुए हैं तो एक और लाइन लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने 200 लिखे हुए हैं ना, वर्ड्स कम लिखे हुए हैं। तो 3 पैराग्राफ हैं, तो किसी एक पैराग्राफ में एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देती हूँ, ऐसे से रेलिवेंट कोई बात लिख देती हूँ। ठीक है। फिर मैं देखती हूँ मेरे पास 7 मिनट बचे हुए हैं, फिर मैं एक और लाइन लिख लेती हूँ सेकंड पैराग्राफ में। फिर मैं देखती हूँ मेरे पास 6 मिनट्स बचे हुए हैं, मैं एक और लाइन लिख लेती हूँ ऐसे से रेलिवेंट। अब मेरे पास 5 मिनट बचे, अब मैंने सिर्फ प्रूफ रीड करनी है, सिर्फ प्रूफ रीड। नहीं, इस दफा तो मैंने प्रॉपर प्लान किया, मैंने प्रूफ रीड करना है। मेरी फ्रेंड ने दिया है, उनके स्पीकिंग में 90 आए हैं, लिसनिंग में 87 और रीडिंग में 80 पर राइटिंग में 76 आए। तो ये सारा वो ये बस सारा ऐसे की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोग टेम्पलेट को रिलीजियसली याद तो कर लेते हैं, मगर टेम्पलेट देखिए, आई डोंट नो, शायद ऐसा हुआ है क्योंकि हमने पीएचडी की हुई है, सबको पता होता है कि अगर एक चीज आप बार बार लिखते हो ना तो वो प्लेजरिज्म में आ जाती है। वो क्या करता है, कंप्यूटर उसको फीड कर लेता है अपने पास। तो कंप्यूटर को शायद उन्होंने ऐसे थोड़े सॉफ्टवेयर सब बना दिया है कि अगर कोई चीज, हर कोई एक ही चीज लिखेगा ना, तो आप वो प्लेजराइज में काउंट हो जाएगा, उसमें मार्क्स कटते हैं। आपको पता होगा प्लेजरिज्म क्या होती है। प्लेजरिज्म, जी जी। एग्जैक्टली तो मुझे लग रहा है, मुझे शक हो रहा है कि उन्होंने जो एसेज है वो फीड कर लिया, वो प्लेजरिज्म होना शुरू हो गए। तो उसको थोड़ा मुख्तलिफ करने का तरीका ये है कि एटलीस्ट आप 5 लाइनें अपनी तरफ से लिखें, कोशिश करें। नहीं तो 3 तो लिखे ही लिखें। तो पहले पैराग्राफ में जो मेरा टेम्पलेट है, जहां मैंने रेड रेड किए हुए ना, वहां मैंने अपनी बातें लिखी है, अपनी लाइनें लिखी हैं, टेम्पलेट की लाइनें नहीं लिखी। और वो अपनी लाइनें मैंने कहाँ से उठाई, ऐसे से। ऐसे का जो टॉपिक है उसके बारे में बातें लिखी हैं। और सेंटेंस लिखे, कीवर्ड ना लिखे। सेंटेंस। सेंटेंस लिखना तो फिर भी आसान है, कीवर्ड तो लिखना मुश्किल है, क्योंकि आपको 10-12 कीवर्ड सोचने पड़ते हैं। सेंटेंस तो बड़ा आसान है, उसके बारे में आप एक जुमला लिखते हैं, वो लिखना बड़ा आसान है। कीवर्ड सोचना, टॉपिक के बारे में 3-4 कीवर्ड सोचना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत मुश्किल है। मीडिया के बारे में आप कीवर्ड सोच रहे हो तो आपको फिर सोचना पड़ेगा, मीडिया में एक टीवी आती है, रेडियो आता है, फेसबुक आता है। आप सिंपल एक सेंटेंस लिख लो कि मीडिया इज काइंड ऑफ सोशल मीडिया विच इज नीडेड टू कनेक्ट पीपल। ये तो बड़ी आसान बात है लिखना। लेकिन जब हम ऐसे में बार बार टॉपिक यूज करते हैं तो वो प्लेजरिज्म में नहीं आता, जैसे अब मैंने नहीं, फर्स्ट बॉडी पर ये स्टार्ट किया। टॉपिक का जो मेरा टेम्पलेट अगर आप देखें ना, मैंने क्या किया, जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ उसमें टॉपिक की पहली लाइन लिख दी। अगर आपके पास 3 लाइनें आ रही हैं, ठीक है, टॉपिक के, तो जो टॉपिक हम्म। का क्वेश्चन है उसमें अगर 3 लाइनें, जहां पहली जगह टॉपिक लिखा हुआ है वहां आप उसका पहला हाफ लिखते हैं ना। तीन तीन हाफ होते हैं ना, 3 उसके पोर्शंस होते हैं क्वेश्चंस के। समझ रहे हम्म। हैं मैं 3 क्या कह रही हूँ। 3 पोर्शन इन दैट सेंस के, एक टॉपिक और एक उसका जो, जैसे एग्री डिसएग्री। हाँ एग्जैक्टली, एग्री डिसएग्री, और तीसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इस तरह है। तो पहले जहाँ टॉपिक लिखा हुआ है वो आप टॉपिक का जो पहला हाफ है ना वो लिखते हैं। फिर दूसरी जहाँ जहाँ टॉपिक है तो वहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा हुआ है, आप लिख दें। तीसरा आप, अगर वो एग्जाम्पल्स पूछ रहा है तो आप एग्जाम्पल्स लिख दें। तो 3 पैराग्राफ में आपने टॉपिक को तोड़ तोड़ के लिखना है। जो लास्ट कंक्लूजन वाला पार्ट है उसमें जहाँ टॉपिक लिखा हुआ है वो आप तीनों लाइनें लिख दें, कोई बात नहीं। ओके। प्लेजेंटिज्म का मतलब ये है कि सारा के ऐसे एक जैसे बनना शुरू हो गए, सबका टेम्पलेट एक जैसा है, ठीक है। वो चीज मीन्स प्लेजरिज्म इस है। चीज को अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैं कहूँ कि सोशल मीडिया के बहुत से इफेक्ट्स हो रहे हैं बच्चों पे। तो अगर मैं सेकंड फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करूँ जहाँ से, ये द मोस्ट प्री पोर्डेंट, मैंने उसका भी नहीं सुना। प्रीपोनेंट वन इज दैट टॉपिक प्रॉम्प्ट कैन नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू समथिंग। तो इसमें मैं एक दफा जैसे फर्स्ट कीवर्ड यूज कर लूँ टॉपिक से ही, टॉपिक लाइन से, और फिर मैं कीवर्ड नहीं नेक्स्ट करना, पैराग्राफ में टॉपिक का भी कीवर्ड नहीं करना, पूरी लाइन करनी है। जो सेम ऐसे में उसने कहा है। हाँ, जैसे पहली लाइन उसने लिखी है कि सोशल मीडिया हैज एन अफेक्ट ऑन पीपल चिल्ड्रंस माइंड। तो जहाँ लफ्ज टॉपिक हम्म। है अब वहां पूरी वो वाली पहली वाली लाइन लिखे, कीवर्ड नहीं लिखेंगे। कीवर्ड अवॉइड करने हैं, ये माइंड में रखें। आपने अगर लिखना है तो फ्रेज, अपनी तरफ से कुछ लिखना है तो फ्रेजेस लिखें। ओके, नहीं टॉपिक लाइन ही लिखते हैं बार बार, टॉपिक इसको लाइन डजेंट लिखिए, अगर टॉपिक के मैटर, और उसको 3। आगे से एक्सप्लेन करते हैं कि आप ऐसा क्यों हाँ, सोचते हैं। फिर दूसरी जगह जब मैंने जहाँ लिखा हुआ है ना मोर ओवर, वहां टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे। फिर दूसरी जगह लिखा हुआ है शायद हाउ एवर, मैंने कुछ लिखा हुआ है अदर्स, एक जगह मैंने अदर्स लिखा हुआ है, तो वहां फिर कोई बात टॉपिक के बारे में लिखता है। मुझे ऐसे लगा कि सेकंड बॉडी पैराग्राफ के लास्ट में आपने लिखा फैक्टर्स इम्पैक्टेड बाय द टॉपिक, एक पॉजिटिव सेंस है, जो कि थर्ड बॉडी पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है, मोर ओवर दैट आल्सो इम्पोर्टेंट टू बी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पे आप थोड़े से डिसएडवांटेज बताने की कोशिश कर नहीं रहे नहीं, हैं कि पहले अदर मैं अदर टॉपिक को पॉइंट्स।
नहीं नहीं, लास्ट कंक्लूजन में आप पूरा टॉपिक लिख दें, कोई बात नहीं, मैंने पूरा टॉपिक ही लिखा था नहीं कंक्लूजन। नहीं, थर्ड बॉडी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, हाँ, जहाँ पे वहां मोर। वहां पे अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कह रहे तो लिख दें, डिसएडवांटेजेस नहीं पूछ रहा, एग्जाम्पल पूछ रहा है तो एग्जाम्पल लिख दें, अगर एग्जाम्पल भी नहीं है, डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो एक और एडवांटेज लिख दें। ओ ओके। मतलब कहने का मकसद ये कि 3 लाइनें आप टेम्पलेट के अलावा लिखें जो कि टॉपिक से रिलेवेंट। टेम्पलेट में जो कंटेंट है वो टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ वोकैबुलरी भरने के लिए है, वो सही है। वर्ड काउंट को कंप्लीट करने के लिए। बाकी जो रेड लाइन है जहाँ दी हुई है, जहाँ जहाँ रेड है, वहां पे आपने टॉपिक के बारे में जुमले लिखने हैं, क्योंकि कुछ तो टॉपिक के बारे में लिखना है, क्योंकि सिस्टम ने उस टॉपिक के बारे में कुछ कीवर्ड्स सिस्टम में फीड हुए हुए होंगे, तो उनको कुछ कीवर्ड के ढूंढ रहे होते हैं, और आपके टेम्पलेट में उसको वो कीवर्ड्स नहीं मिल रहे जो टॉपिक से रिलेवेंट है। मैंने तो थर्ड बॉडी टेम्पलेट, पैराग्राफ के एंड पे मोर ओवर से आप थोड़े से डिसएडवांटेज बताना चाह रही हैं, बेशक उसने डिसएडवांटेजेस नहीं मांगे, मैंने वही उसने बात सिर्फ कही। एडवांटेज। आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे, अगर वो डिसएडवांटेजेस मांग रहा है तो लिखे, नहीं तो एक और एडवांटेज लिख ले। अगर वो एग्जाम्पल मांग रहा एडवांटेज। है तो आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अगर वो डिसएडवांटेज मांग रहा है तो डिसएडवांटेज, अगर दोनों नहीं मांग रहा तो एक और एडवांटेज लिखते हैं। ओके। मतलब अपनी तरफ से आपने 3 लाइनें टाइप करनी है टॉपिक के बारे में, मीडिया है तो मीडिया के बारे में 3 लाइनें लिखे हैं, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के बारे में 3 लाइनें लिखे हैं, स्टेटमेंट्स आप लिखे हैं, सेंटेंसेस 3 जरूर, ताकि वो कीवर्ड पिक करे। टेम्पलेट में उसको कीवर्ड नहीं मिल रहे। टेम्पलेट्स तो सब किसी तरह जा रही हैं, तो वो फिर। बिल्कुल, मैंने यही अवॉइड किया था, क्योंकि मैंने काफी लोगों के स्कोर्स देखे थे, 90, 80, 80, और ऐसे में 77, 76, 74, 73, सॉरी उसमें राइटिंग में। तो मैं समझ गई थी यहाँ ऐसे का मसला आ रहा है, और ये हर हर बार कहते हैं होता है, एवरी 6 मंथ्स ये इशू आता है। क्योंकि सब एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, इसलिए। तो ये सब क्या करते हैं, टेम्पलेट टेम्पलेट ही टाइप करके आ जाते हैं, टॉपिक के बारे में कुछ नहीं लिखते, जो उन्होंने टेम्पलेट रट्टा हुआ होता है वही टाइप करके आ जाते हैं, टॉपिक के बारे में एक वर्ड भी नहीं लिखते हैं। और मुझे एक फ्रेंड ने बताया था कि स्पेस लाजमी देनी, जैसे मैंने इंट्रो लिख दिया, उसके बाद जैसे मेरा इंट्रो हाफ लाइन में खत्म हुआ, लास्ट लाइन, तो उसके बाद हाँ सिर्फ मैं space- नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, मैं हाँ, स्पेस स्पेस। नहीं देता। मैंने मॉक में कभी स्पेस नहीं दी, वहां दी थी। स्पेस एक्स्ट्रा देनी है उसको शो करने के, मैंने एक स्पेस दी है। हाँ, मैंने दी थी जस्ट इन केस, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप ऐसे लिखते हो आप स्पेस देते हो। ओके, चलें ठीक हो। मुझे आइडिया तो हो गया, मैं 2-3 ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ। सही, मगर जब तक तो आप 100% शो नहीं देना, आपको डेट बुक नहीं करनी चाहिए थी। ये गलती करते हैं लोग, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर तो सीट बुक हो जाती है, और इतने जो है वो स्लॉट्स खाली पड़े हुए होते हैं। अनटिल अनलेस यू आर श्योर, यू शुड नॉट बुक टेस्ट। मैंने नहीं बुक किया था, मैंने 24 घंटे पहले ही बुक किया था, जब मुझे श्योर था कि हाँ नाउ आई एम रेडी, क्योंकि आपको स्ट्रेस रहता है, आपने 80,000 भरे हुए, भाई 70,000 भरे हुए। आपका सेंटर कराची में है या यू आर फ्रॉम कराची और समवेयर एल्स? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया, इधर डेट्स मिल नहीं रही थी, ऐसे बहुत स्पीड में जा रही थी। तो मैं तो 1 दिसंबर को दिया था, उसके बाद तो मैं 20th को था देने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं फ्रेंड का करता हूँ, वो कब देती है। फिर भी 1 वीक को दिया तो उनके राइटिंग में कम आ, फिर मैंने कहा अब क्या करें। फिर मैं वही राइटिंग के पीछे ही मैंने सारा यूट्यूब वगैरह किया, और मैंने कहा चलो मैं डेट ये बुक कर लेता हूँ कि मीनवाइल मेरा राइटिंग हो जाएगा। लेकिन जब उनके एक फ्रेंड ने दोबारा राइटिंग दी है परसों, तो उसके राइटिंग में 72 आए हैं। तब मैंने कहा अब तो मैंने टेक्स्ट बुक, अब तो मैं चेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि 14 डेज पहले तक का टाइम होता है, टेस्ट की डेट चेंज कर सकते हो। हम्म। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, इसलिए मैं फिर फेसबुक पे स्क्रॉल कर उसकी रहा था कि जगह कोई उसकी मुझे। ट्रिक ये होती है, अगर किसी में मार्क्स कम आ रहे हैं, मैंने ये ट्रिक की थी, मैंने फिर लोगों से पूछा था, फिर मैंने उन लोगों को फॉलो, मतलब जिनके फॉर एग्जांपल मार्क्स आए जो टेस्ट दे रहे थे, तो मेरे पास जो एक टेम्पलेट था, मैं लोगों से पूछती थी आपने ये टेम्पलेट यूज किया जिसके मार्क्स, वो कहते थे हाँ, तो मुझे समझ आ गई कि ये टेम्पलेट काम नहीं कर रहा। फिर एक और साहब ने ऐसे अपने मार्क्स शेयर किए, तो मैंने उससे पूछा कि आपने ऐसे कौन सा यूज किया, टेम्पलेट शेयर करे, जब उसका टेम्पलेट देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि ये टेम्पलेट नहीं काम कर रहा। तो मैं फिल्टर करती गई कि ये टेम्पलेट भी काम नहीं कर रहा, ये भी नहीं काम कर रहा। उसके बाद एक साहब ने अपने मार्क्स शेयर किए, उसके मार्क्स आए हुए थे, तो मैंने कहा आपने कौन सा टेम्पलेट यूज किया, उसने मुझे टेम्पलेट दिया, जो उसका टेम्पलेट था, मुझे लगा कि अच्छा ये वाला टेम्पलेट काम कर रहा है। बट उसके बाद भी मैंने थोड़ी ट्रिक ये की कि मैंने देखा कि लोग, फिर कुछ लोग ये बता रहे थे, अब कुछ लोग का टेम्पलेट मेरा टेम्पलेट सेम था, मगर उनके मार्क्स फिर भी कम आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कीवर्ड यूज कर रहे हो,
या फ्रेजेस होने का कीवर्ड। तो मुझे समझ आई कि कीवर्ड्स मसला कर रही है, फ्रेजेस होने चाहिए। थोड़ा phrases mean पूरी लाइन सा लिखी, जैसे इट हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो इस तरह से कह रहे हैं ना खाली लिखें कि जैसे लफ्ज में कीवर्ड ना लिखें, सिर्फ पूरा उसको बताएं कि सोसाइटी में अगर बेनिफिट है तो क्यों है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कीवर्ड से देखिए ना, कीवर्ड से कहानी नहीं समझ आ रही ना। हो सकता है आपने जो कीवर्ड लिखा है वो उसके सिस्टम में फीड ना हो, फिर तो उसको कुछ मार्किंग करने के लिए कुछ मवाद तो कुछ कंटेंट तो आप सेंटेंस लिखेंगे तो उसको कोई कंटेंट मिलेगा ना। आप अब प्रॉब्लम ये था कि मैंने आपको भी एक टेम्पलेट सेंड की है, जो कि आपकी टेम्पलेट से काफी हद तक मिलती जुलती है। मेरी एक फ्रेंड ने दिया था टू मंथ्स पहले, और हाँ, उनके 80 आए थे राइटिंग में। राइटिंग में तो 80 अब आए मुझे थे, ये, इसका हाँ मतलब उनके कि वो 80 आए, वाला टेम्पलेट काम कर रहा है। ऑलमोस्ट आपके मिलता जुलता है, बस कुछ लाइंस थोड़ी सी चेंज हैं। जैसे मुझे आपकी भी कुछ लाइन ऐसे लगा कि वरुण की टेम्पलेट में से कुछ ये पूरा बॉडी वरुण थर्ड। वरुण का ही है, पूरा वरुण का ही है। वरुण ने जो बिल्कुल लेटेस्ट ऐसे दिया था ना, जो पहले मेरा टेम्पलेट वरुण का जो 2 पॉइंट वाला टेम्पलेट था मेरा, वो था। फिर वरुण ने एक और 3 वाला टेम्पलेट दिया है, हर बार वो वरुण चेंज ने करते हैं। 1.3 है, हाँ, वरुण लेकिन का। 1.3 थोड़ा डिफरेंट है आपके वाले से। अभी भी मेरे पास 1.3 भी है उसका, लेकिन आपके काफी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद आपने अच्छा, मॉडिफाई किया हुआ है। अच्छा है ना कि हाँ, मैंने कुछ चीजें खुद भी चेंज की हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्लेजरिज्म हो रही है, तो मैंने चेंज और किया। उसके वर्ड्स बहुत ज्यादा थे वरुण के, क्या? ऐसे के ही वर्ड्स बहुत, 260 हो जाते थे, 250 उसकी खाली टेम्पलेट के, हाँ, नहीं, जो उसकी वन मैंने अडेप्ट होगी। ऐसा ऐसे किया था कि अगर मैं खुद से ऐसे टेम्पलेट में कंटेंट कम हो और खुद से मैं अपनी तरफ से ज्यादा लिखूं, मैंने खुद को इस तरह प्रैक्टिस करवाई थी कि मैंने ये लिमिट कर लिया था कि वरुण के मैंने सिर्फ 200 वर्ड्स लेने, बाकी 50 वर्ड्स मैंने खुद से लिखने हैं। हाँ, ये अच्छा किया आपने। तो बाकी अब मैंने जब टेम्पलेट याद की है, मैं भी वही करूंगा, आपसे मिलती जुलती है। आपकी टेम्पलेट में से मैं ये करूंगा कि सेकंड और थर्ड बॉडी पैराग्राफ की जो है उस टेम्पलेट में 2 लाइंस डिफरेंट डिफरेंट है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। हाँ, और बाकी टेम्पलेट ऑलमोस्ट आपकी आपने, और उनकी टेम्पलेट सिमिलर है। टेम्पलेट जो आपने याद की है ना, वही रखें, अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं। आपने सिर्फ ये स्ट्रैटेजी करनी है कि किसी तरह आपने 3 लाइनें अपनी लिखनी है। पहली लाइन आप पहले पैराग्राफ में लिखिए, दूसरी लाइन आप दूसरे पैराग्राफ में लिखिए, तीसरी लाइन तीसरे पैराग्राफ में लिखिए। मगर आपने अपने तरफ से 3 लाइनें हर हाल में लिखनी है, आपके मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। टेम्पलेट से फर्क नहीं पड़ रहा, आप क्या लिख रहे हो टॉपिक से रेलेवेंट, उससे फर्क पड़। टेम्पलेट के अंदर जो अल्फाज है वो टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ वोकैबुलरी का कोटा भरने के लिए कि 300 वर्ड्स कहाँ से। और टेम्पलेट उनके लिए जिनकी अंग्रेजी वीक है, तो उसको पता है वो खुद से ज्यादा लिख नहीं सकता, तो वो फिर मेरी टेम्पलेट। ग्रामर वीक है, मुझे बस ये इशू होता है खुद से लिखने में। बाकी अब जैसे ऐसे मैंने कल राइट किया, ये लगा रहा था कि साथ में से ये जो टेम्पलेट आपने शेयर किया है ना, इसमें कहीं से भी जाहिर नहीं हो रहा कि आप खुद से क्या लिखेंगे। जहाँ पॉइंट 2 लिखा हुआ है ना, वहां आपको खुद से लिखना पड़ेगा। हेल्प 2.2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे आपने अपनी लाइन लिखनी है। खुद से लिखना है, खुद से लिखने हैं यहाँ पे। पॉइंट थ्री पे भी खुद से लिखना है, जैसे आप अगर हाँ, आपको मगर आपने फर्स्ट लाइन बॉडी, लिखनी है, लाइन लिखनी है, पॉइंट नहीं लिखना। मैंने लाइन ही लिखी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने कल एक ऐसे अटेम्प्ट किया था, उसने आज सिचुएशनल ऐसे आ रहे हैं, जैसे पूरा कीवर्ड में होता है कि आप क्या सोचते हो कि कुछ चीजों में एज होती है रिस्ट्रिक्शन, मैरिज और ड्राइविंग के। तो उसने आगे से ये भी मेंशन किया, ऐसे पे अभी 3 दिन पहले आया था, कि आप कोई एक चीज को सपोर्ट करो और उसके बारे में एक्सप्लेन करो। जैसे तो सेलेक्ट वन एक्टिविटी एंड स्टेट द मिनिमम एज दैट यू थिंक। तो हाँ, जैसे मैंने इस हिस्से में ड्राइविंग लिया, तो मैंने इसको ऐसे स्टार्ट किया कि देर आर इन टुडेज फास्ट पेस लाइफ देर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर ड्राइविंग, स्पेशली फॉर यंग पीपल अनलेस दे रीच अ सर्टेन एज लिमिट, fosters this thinking that a person should be at सही। least 18 years of age to start driving. वो My ऐसे views ना, are in, वो ऐसे जो है ना, आइल्स में ऐसा होता है कि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है, पीटी में आपको एग्जामिनर को एक्सप्रेस नहीं करना होता, इम्प्रेस नहीं करना होता। तो उन्होंने इतना उसका माइंड नहीं रखा हुआ कि वो देखे आपने कितना अच्छा टॉपिक लिखा। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपने उसको कंटेंट प्रोवाइड, अल्फाज, फ्रेजेस प्रोवाइड किए हैं कि नहीं किए गए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? वोकैबुलरी, असल वर्ड है कि वोकैबुलरी प्रोवाइड की है कि उसको नहीं की। तो अगर आप एक कीवर्ड लिखते हैं वो वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी आपने 3 4 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, और वो 3 4 5 वर्ड्स आप कैसे सेंटेंस से लिखते हो। तो ये मेरा सेंटेंस सेंस ठीक है, मेरे पास 40 पैराग्राफ, देयर आर न्यूमरस सेंटेंस आप जो भी लिखोगे वो ओके करेगा, बस आपने उसको सेंटेंस देना है। ठीक है।
चले और कुछ पूछना है क्योंकि सेशन एंड होने लगा है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। नो तो इश्यूज। मैं भी करता हूँ और मैं आपको कल लाजमी बताऊंगा मेरे रिजल्ट आए। इंशाल्लाह दुआ थैंक यू, कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।